देखो, we were doing the objectives of social security. What are the objectives, what are the reasons why social security are important part of the salary. I already told you that social security is of two types. One is social insurance and the other one is social assurance. We will also have discussion about what is social assurance, but we will focus more on insurance part because insurance part is guided by labor laws, and labor laws is something you need to focus on. That is why we'll focus, and you are all being employed. हम लोग employment से related social security की बात करेंगे, इसीलिए social insurance पे ज़्यादा ध्यान देंगे. ठीक है? Write down. The first objective was to continue income of the employee. Second was to support and livelihood to the employees. Third, to prevent the social problems in case of contingencies of life. For example, prostitution, robbery, trafficking. Fourth, full utilization of working capacity on hazardous work. See, what does this mean? That there are certain hazardous work in the field. Hazardous work सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं है. The work that involves a death threat. ठीक है? जिस काम में डिसेबल हो जाने का या फिर डेथ हो जाने का चांसेस होता है बहुत सारे, जैसे कि even our soldiers when they are posted in some odd regions like Kashmir, Jammu and Kashmir to northeast Maoist place, Naxalite place, or some odd locations, they are being paid more and they do have coverage in case of death. Fine, the compensation part. Plus, in factory, when you talk about in factory, in every factory there's a waste effluent plant, right? Waste effluent plant होता है ना, factory का जो waste निकलता है जहाँ से, that plant is not easy to work with. या सीवेज का जो भी चीज होता है उसको जो लोग क्लीन करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये आसान नहीं होता है काम करना. That is very stinky, that is very dirty, and social security is one reason that would drive people towards those jobs. Okay, now write down fourth point. Fifth point, to retain workers at work. To retain workers at work. To retain workers at work, यानी वर्क प्लेस पे वर्कर्स को रिटेन करने में सोशल सिक्योरिटी हेल्प करती है. Retain workers at work. What does this mean? कोई बता सकता है कैसे वर्कर को सोशल सिक्योरिटी हेल्प करती है मोटिवेशन के अलावा? See, when you study social security in details, you will see gratuity. Gratuity पढ़े हो ना तुम लोग? 5 years of continuous service हो गई. उसके बाद जैसे जैसे लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ योर वर्क बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे पैसा ज्यादा मिलेगा कि नहीं? तो आपका ये लालच रहेगा ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लंबे समय तक टिक काम करने का, क्योंकि आप लंबा टाइम पे काम करेंगे तो आपकी ग्रेजुएटी का पैसा भी बढ़ेगा, उसी तरीके से और भी चीजें बढ़ेंगी. अंडरस्टूड? राइट नाउ, टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क. Next point, to improve morale and job satisfaction. To improve morale, M-O-R-A-L-E, morale and job satisfaction. To improve morale and job satisfaction. देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होना, लेकिन उसमें एम्प्लॉइज को खुश रखना, मोटिवेटेड रखना और जॉब का सेटिस्फैक्शन होना एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन का साइन होता है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक बहुत बड़ा सा पार्ट है, उसमें आपको उसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारी अदर चीजें भी. इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर अच्छा नहीं होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब जो रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क. ऐसा नहीं है कि पर्सनल रिलेशन की बात यहाँ नहीं होगी, सिर्फ द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में बनता है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है. ठीक है, तो अगर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा नहीं होता है ना, तो
ग्रीवांस बढ़ता है, ग्रीवांस मानी शिकायत बढ़ती है, और ये शिकायत कभी कभी इतनी बढ़ जाती है, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दिस लीड्स टू लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स। स्ट्राइक सुना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बिल्कुल स्ट्राइक कर दिया वर्कर्स, वेज बढ़ाने के नाम पे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एक शिफ्ट में अगर काम ब्रेक डाउन हो जाता है, सिर्फ एक शिफ्ट में, यानी 7 घंटे या 8 घंटे का अगर शिफ्ट होता है और उसमें अगर काम नहीं हुआ, तो वो पूरा प्रोडक्शन का जितना चार्ट होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो आप सोचिए कि अगर 3-4 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए फैक्ट्री बंद हो गई तो कितना करोड़ का नुकसान कर देगी, राइट। इसीलिए जो वर्कर्स होते हैं उनको खुश रखना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनकी गुड मोरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन और मोरल में क्या फर्क होता है? मोटिवेशन इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर, आप अंदर से ही मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, तो दुनिया का कोई टीचर, कोई माँ बाप आपको बोलता रह जाए आप नहीं पढ़ेंगे, आपको वो ड्राइव ही नहीं आएगा अंदर से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको इंट्रिंसिक ड्राइव है पढ़ने का, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, नॉलेज एनहांस करना चाहिए और फुल ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू क्वालिफाई सम एग्जाम और बिकॉज यू नीड टू वर्क हार्ड इन लाइफ टू अचीव सक्सेस, फिर आप ये मैजिकली देखेंगे कि आप टाइम कैसे निकालते हैं। आप टाइम निकालेंगे, आपका दिमाग मोटिवेटेड रहेगा, तो वो फ्रेश रहेगा, हमेशा दिमाग में एक टारगेट होगा। आप रात में ये एक चैप्टर या एक स्टैंजा छोड़ के सोएंगे, सुबह आपको ये खुद मोटिवेशन रहेगा कि उतना काम खत्म कर दो, एंड देन यू विल नॉट रन आउट ऑफ टाइम, बिलीव मी। तो मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। मोरल में ये भी एडेड होता है कि आप कंपनी, ठीक है, आप कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की प्रिंसिपल्स, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट के बारे में सम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप क्या सोचते हैं वहाँ के बारे में, ठीक है। तो एम्प्लॉय की मोरल में अगर इस कॉलेज से अच्छा कुछ मिल रहा है आपको, तो आप अच्छा ही सोचेंगे यहाँ के बारे में, राइट। तो वो आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे तो कॉलेज की किसी और चीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। राइट डाउन नेक्स्ट। One important objective of social security, one important objective of social security is to improve the supply of labor on unhygienic work. Labor on unhygienic work. There are lots of industrial organizations which are involved in such types of work. Which are involved in such types of work. Due to social security, due to social security, it is possible to attract, due to social security, it is possible to attract
People to join this work. People to join this work. Last point, to minimize absenteeism. To minimize absenteeism. Absent, double E-I-S-M, absenteeism or labor turnover. Or labor turnover, okay? Okay. Tell me, what is the difference between absenteeism and labor turnover? Is there any difference? यस मैम। बोलो। मैम एब्सेंटीज्म मतलब जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है और वो रेगुलर वे में नहीं आ रहा है, और कहाँ लेबर पर काम टर्नओवर कर रहे हैं? मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपरली वो एब्सेंट होते रह रहा है और काम पे रेगुलर डे पे नहीं आ पा रहा है, अल्टरनेटिव डेज या जो भी उसका कुछ भी पर्सनल इशू होगा। और लेबर टर्नओवर में वो होता है जो न्यू वर्कर और जो ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर छोड़ के जाते हैं उससे कहते हैं। ओके। एनीवन एल्स? अच्छा, इंडिविजुअली भी अगर इसका मतलब मालूम हो, एब्सेंटिज्म का अलग से और लेबर टर्नओवर अलग से, एनीवन? ऑर्गेनाइजेशन या फिर छोड़ के जाता है। ओके। अच्छा, टेल मी, if I am working, what happened? If I see, I am working in this organization, I took leave for 3 days and I went for some of my personal work. Is it absent? Will I be called absent? No. In HR terms, I'll not be called absent. ये absent वो वाला absent नहीं जो स्कूल में absent मैम absent सर वो वाला नहीं है कि अटेंडेंस बन रहा है। इस absenteeism का HR में मतलब होता है when you are absent, when you are not present at your work without permission, you will be called absent. आपने परमिशन नहीं दिया है, आपने बताया नहीं है कि आप नहीं आने वाले हैं, and you absconded from the work, that will be absent. Absenteeism, बिना बताए काम पे नहीं आना, ये भी वर्कर्स करते हैं। अगर वो खुश नहीं होंगे, if they are not psychologically happy to be a part of the organization, they are not happy with the policies, money, everything, they'll start getting absent. Absenteeism भी एक major problem industrial workers में देखा जाता है। Second thing, labor turnover. What is labor turnover? It's the ratio of labor leaving the organization in a particular period of time. माने कि लेबर टर्नओवर जब आप डिफाइन करेंगे, आपको ये मेंशन करना होगा इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपसे डेटा पूछूंगी कि 2 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशियो क्या रहा, बट आई नीड टू स्पेसिफाई 2 years. डू यू गेट दिस? क्योंकि हर साल में अलग अलग होता है। ओके, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज लेबर टर्नओवर? टू एन एक्सटेंट लेबर टर्नओवर को इंडस्ट्री में बहुत बुरा नहीं माना जाता, टू एन एक्सटेंट ओनली, because when laborers leave the organization, it's not just labor, it's also the employee people. When they leave the organization, fresh employees will be joining your organization. They will bring in new ideas, new methods of doing something, new way of cognitive thinking, maybe new management style if the person is high up the hierarchy with them. So to an extent, it's okay if you have a certain percentage of labor turnover. But after a certain percentage, this becomes a serious HR problem for the organization. Because I already explained it to you कि आपको हायर करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा लगता है, आपको ट्रेन करने में वहां पर पैसा लगता है, और आप अगर छोड़ के चले जाते हैं काम, क्योंकि आप जब फ्रेशर होते हैं तो आप काम धीरे करते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है, यू आर ग्रेजुअली लर्निंग हाउ थिंग्स आर बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट वंस यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, आप काफी वेल वर्स्ड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, राइट?
आप अपना पहला दिन कॉलेज का याद कीजिए, किस क्लास में बैठना है, कौन से टीचर आएंगे, कैसे काम होता है, कहाँ प्रोजेक्ट जमा किया जाता है, कॉपी क्या प्रोसेस है। इसको सिंक इन करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब कुछ होता है क्या? नहीं। तो आप पहले साइकोलॉजिकली ज्यादा फ्री महसूस करते थे कि अब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई ना, बढ़ेगी ना। किसी नई जगह हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्यों पहले से तैयार होते हैं, पहले से अपना सारा डॉक्यूमेंट सेग्रीगेट करते हैं, यू नो देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ एंजाइटी, अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी। ये चीज होता है वर्क प्लेस पे। परफॉर्मेंस पहले बहुत नीचे होती है, फिर वहां से ऊपर होते 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 ऊपर होती है, 2 साल 3 साल 4 साल, एंड देन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा मेथड है जिससे ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करने में हेल्प किया जाता है, एब्सेंटिज्म को कम किया जाता है और लेबर टर्नओवर को घटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट यू राइट स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। Scope of social security. The main as well as the main as well as auxiliary conditions the main as well as auxiliary conditions in which social security is provided, conditions in which social security is provided is considered as the scope of social security, is considered as the scope of social security. It is provided by government. No, first write employer. It is provided by employer as well as various government machineries. Government machineries. Scope of social security लिखते जाओ। देखो पॉइंट 1 क्या क्या होता है बताओ, कहाँ दिया जाता है, बताते चाहिए आप लोग, बताइए कौन सा कंटीजेंसी बताए थे लाइफ का? सिकनेस, राइट डाउन, पहले बता दो, चलो बताओ। sickness, maternity, disablement, unemployment, death, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट सिकनेस, sickness. Second point, maternity. Second is maternity. Third, disablement. Fourth, unemployment. Fifth, old age. Fifth, old age. Sixth, death. Seventh, write down. Seventh, disablement और ब्रैकेट में डालो employment injury. Employment injury. Next, you write medical facility. Medical facility. Medical facility और ब्रैकेट में उसमें डालो in the first 3 main cases.
in the first three main cases. In three main cases. Okay. You do one thing. Did you write that employment? Did you write the name of social security legislation in the last class? No. Do one thing. Start writing. The various social security legislations are the various social security legislations are write out. Number one, देखो ये वाला एक्ट आपको तुम फिर आज वैसे ही कर रहे हो क्लास में. Also getting compensation. इसीलिए आप इसको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के ही तरह से देखिए लिखिए, लेकिन हम बता दिए कि इसका अमेंडमेंट के बाद एम्प्लॉइज नाम चेंज कर दिया जाएगा. फिर आपको मिलेगा नहीं, इसलिए हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. देखिए तीनों 6 एक्ट लिखिए 5. handwriting. Ma'am, something is written after 1948. After 1948 ESI पढ़ चुके हो ना? ESI बता चुके हैं? एक बार Yes. बता देंगे. तब एक्ट थोड़ा थोड़ा पूरा प्रोविजंस नहीं जानना है आपको, बस जानना है इस एक्ट में क्या है. कभी जानो तो पता चलेगा कि ये एक्ट किसके बारे में. कैलकुलेशन यहाँ पे ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन ये सब भी है. First one is Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, Workmen's Compensation Act 1923, the Treatment of Gratuity Act 1972, the Maternity Benefit Act 1961, Employee State Insurance Act 1948. ठीक है?
अब आप अपनी कॉपी में जहां पर सिकनेस और ये सब लिखे हैं ना, सिकनेस डिसेबलमेंट ऐसा लिखे हैं, ये एक्ट का नाम लिखा आपने और नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5। एक कंटिजेंसी जैसे सिकनेस वो 2 एक्ट या 2 से ज्यादा एक्ट में भी कवर हो सकती है, तो पूरा पूरा एक्ट नहीं लिखना है सब में। जैसे सिकनेस लिखा है, सिकनेस, सिकनेस के आगे जो नंबर है, जैसे मान लीजिए कि सिकनेस, मान लीजिए ये साइड में कवर्ड है सिकनेस, सिकनेस के पास 5 करेंगे। समझ में आया लिखने का तरीका? फिर कॉमा देके और जो दूसरा एक्ट है उस एक्ट का अपनी कॉपी पे ध्यान दीजिए, जिस नंबर से लिखिए वैसे लिखिए। लिखिए सिकनेस, सिकनेस में डालिए प्रोविडेंट फंड एक्ट। देखिए अपने कॉपी में पहला नंबर पे लिखे है ना, नंबर 1 डालिए उसमें सिकनेस में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, सिकनेस नंबर 1, देन ईएसआई, उसी में ईएसआई भी कवर होता है। कितने नंबर पे है ईएसआई? 5 पे, 5 डालिए कॉमा देके। उसी में डालिए ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी कितने पे है? 3। तो पहला जो सिकनेस है वो किसके एक्ट में कवर्ड है? प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और ईएसआई। लिखने का तरीका समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट लिखो मैटरनिटी, मैटरनिटी लिखो, मैटरनिटी लिखो, मैटरनिटी बेनिफिट है कितने नंबर पे ये भी डालो, दूसरे कॉपी में लिखो, लिखे हो ना, क्वेश्चन भी आएगा। मैटरनिटी नंबर 4 और ईएसआई 5। नेक्स्ट डालो डिसेबलमेंट, कंपनसेशन एक्ट 1923, कंपनसेशन एक्ट 1923, ESI, ESI and gratuity, gratuity डन। नेक्स्ट आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट में डालो, अनएम्प्लॉयमेंट में ESI, ओनली ESI। नेक्स्ट डालो ओल्ड एज, मैम डिसेबल, हाँ बोलो। डिसेबलमेंट का क्या बताएं? डिसेबलमेंट में 3 एक्ट रहेगा, एक तो कॉम्पनसेशन एक्ट रहेगा, दूसरा ESI रहेगा और तीसरा ग्रेच्युटी। डन। मैम मैटरनिटी में भी यही होगा? किसमें? मैटरनिटी में? मैटरनिटी में तो सिर्फ 2 एक्ट है, एक ESI कवर करता है और एक जो कोर एक्ट है उसका मैटरनिटी बेनिफिट 1961, बस 2। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है? ओल्ड एज, ओल्ड एज में डालो PF, ग्रेच्युटी, हाँ PF एंड ग्रेच्युटी। ओल्ड एज पे ESI नहीं कवर करती, ओल्ड एज के लिए ऐसा कोई अलाउंस नहीं है ESI। ओल्ड एज नहीं लिखवाए थे, ओल्ड एज ये लिखवाए थे कि सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है इस केस में, लेकिन ESI नहीं देती। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट डेथ के केस में कोई बेनिफिट नहीं देती है, बल्कि बेनिफिट नहीं लेती है। अगर माँ मर गई, उसका अलग अलग प्रोविजन है कि अगर माँ मर जाती है या बच्चा अकेले मर जाता है या माँ और बच्चा दोनों का डेथ हो जाता है तो बेनिफिट रोक दिया जाता है। हो गया? नेक्स्ट डालो डेथ, ओल्ड एज में सिर्फ PF और ग्रेच्युटी। ठीक है, एक डेथ बचा है ना, डेथ में डालो ESI, कॉम्पेंसेशन और ग्रेच्युटी। ESI डेथ में ना, ESI, कॉम्पेंसेशन एक्ट एंड ग्रेच्युटी। मैम अनएम्प्लॉयमेंट का रिपीट कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ ESI कवर होता है बस। किसी को कोई कंफ्यूजन? हो गया सबका लिखा हुआ? हो गया? ठीक, अब देखिए ये सारा सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है। अब हम थोड़ा सा 10 मिनट
देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा सा दिखते नीचे दिखेगा ना। यस मैम, यस मैम। सीधा सोशल सिक्योरिटी समझाएंगे ना एक्ट, याद कर लोगे तो याद तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझो कि सोशल सिक्योरिटी किसका पार्ट होता है। ये बस 4 मार्क करके कॉपी में लिख लेना कभी भी, ऐसे जस्ट समझने के लिए, ठीक है। The industrial work, the industrial relation is guided by certain laws. अगर लेबर लॉज नहीं होंगे तो क्या हो सकता है उससे? एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करेगा। मानो तुमको बोला 500 रुपए का काम कराओ और उसके बाद कोई लीगल एनैक्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो 200 रुपए भी देके भगा देगा, जाओ किसको कंप्लेंट करो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही होता है ना। एक लड़का को अगर दुकान में, राशन की दुकान में ऐसे ही रखा जाता है और बोले कि 1500 रुपए हम तुमको देंगे महीने में, और उसको 1000 ही रुपए देता है, तो वो कुछ कर सकता है क्या? कहाँ जाएगा? जब रजिस्टर्ड ही नहीं है वो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का लॉ उस पे लागू ही नहीं होता है। लेकिन जहां इंडस्ट्री की बात आ गई, जहां मिनिमम वेज इनैक्ट हो गया कि आप इससे कम पैसा नहीं दे सकते हैं, वरना आपको फाइन हो जाएगी एज पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, जिस एक्ट में जो भी चीजें नहीं पालन करने के लिए मेंशन की गई है। समझ में आई बात? जैसे कॉम्पेंसेशन एक बहुत अच्छा एक्ट है, अगर आप कॉम्पेंसेशन नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है। ये देखा महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास, आइडिया है कुछ? जब वो बन रहा था तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे, तो एक वर्कर काम करने के टाइम पे, काम करने के दौरान छत से गिर के मर गया था। काम करते करते मर गया था, बहुत हाइप हुआ था न्यूज़। तो वर्कर्स को जनरली हमारे यहाँ लेबर लॉ सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि वर्कर्स को आइडिया ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होते, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, ये सब मालूम नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारा लेबर लॉज को ऐसे माने इनैक्ट होने के बावजूद यूज नहीं किया जाता है। तो वो जब कॉम्पेंसेशन में गिर के मर गया तो उसका फैमिली वाला आया है, कुछ मुआवजा दे दीजिए, कुछ नहीं, भगा दिया उसको। बाद में उसकी वाइफ को किसी ने बताया कि भाई कॉम्पेंसेशन आपको मतलब कि काफी मोटा पैसा कॉम्पेंसेशन में मिलेगा, क्योंकि डेथ हो गया है वर्कर का, कॉन्ट्रैक्ट पे था वो वर्कर। तो फिर वो रिटन कंप्लेन दी कि ऐसा ऐसा है, भाई इनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं। जो लेबर कमिश्नर थे उनके पास चिट्ठी गई, लेबर कमिश्नर ने पहला नोटिस दिया उसके कॉन्ट्रैक्टर को कि आप उसका कॉम्पेंसेशन पे कीजिए। देयर वाज नो रिप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी नोटिस गई कि कॉम्पेंसेशन पे कीजिए, नहीं किया रिप्लाई। थर्ड नोटिस में उसकी हालत खराब होगी, सारा कॉम्पेंसेशन पे किया, वरना क्या होता, सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती। कॉम्पेंसेशन नहीं, उसका हर एक्ट के लास्ट में ये दिया रहता है कि अगर आप इसको पालन नहीं करते तो क्या फाइन दिया जाएगा, है ना। क्या होता है, उसका पूरा प्रॉपर्टी सीज होता है। आपको पता है नीलामी होती है तो क्या होता है, करोड़ रुपए की संपत्ति 10 लाख रुपए में बिकती है, होता है ना। महंगी महंगी गाड़ी कितने में बिकती, कौड़ी के नाम बिकती है, और उसके पूरे प्रॉपर्टी का नाम सोचो कितना हो, तो कॉम्पेंसेशन तो उसका 100 भी पार्ट नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉयर होता है, तो चाहे जितना पैसा जिस तरीके से बचा सकता है वो बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए लॉज का इनैक्टमेंट बहुत जरूरी है, ताकि वर्कर्स का भी एक सेफ हो। मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा तो वर्कर्स की जो हालत है वो कभी देंगे मिनिमम वेज नहीं देंगे ना। इसीलिए बहुत सारे लेबर लॉज इनैक्ट किया गया है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, और सोशल सिक्योरिटी उसमें से एक लेबर लॉ। सोशल सिक्योरिटी बता दिए हम, लेकिन वो क्या पार्ट है, थोड़ा सा मैंने बच्चे के बारे में जान रहे हो तो उसके पेरेंट के बारे में भी जानो, ज्यादा क्लियर होगा। तो पेरेंट वही है लेबर लॉ, और उसका एक पार्ट है ये सोशल सिक्योरिटी। होता ये है कि लेबर लॉ मेनली 4 तरीके का होता है। आप इसको लिख करके बस रख लीजिए, याद वाद नहीं करना है आपको, समझाने के लिए बता रहे हैं। पहला होता है प्रोटेक्शन,
दूसरा होता है रेगुलेटिव, तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी, जो आप अभी पढ़े और जितना सारा एक्ट है ये सब सोशल सिक्योरिटी में आता है, और चौथा होता है वेलफेयर। पहला होता है प्रोटेक्टिव, यानी वर्कर्स को एम्प्लॉयर से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन बचाने के लिए। जब हम प्रोटेक्ट की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट में तो दो कंडीशंस आ जाएगा। एक, आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस, और दूसरा वेज। वर्किंग कंडीशन मतलब अगर किसी वर्कर को 40 डिग्री टेम्परेचर पे, जैसे चूड़ी उड़ी बनाने वाली फैक्ट्री होती है ना, उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि वो आग पे काम होता है और वर्किंग कंडीशंस अगर ठीक नहीं रहे तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में द फैक्ट्रीज एक्ट है, एक द फैक्ट्रीज एक्ट है 1948। इस एक्ट में ये सारी चीजें मेंशन्ड है कि प्रॉपर लाइट होना चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, उसके रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, दो वर्कर के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सटे जा रहे हैं, कंजस्टेड हो रहा है, आप कैसे काम करेंगे, उसमें परेशानी होगी ना काम करने में। छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, माने उससे ज्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव है, वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाता है उसके एम्प्लॉयमेंट के समय में, ठीक है। इसमें बहुत सारा आता है, वर्किंग कंडीशन जानना नहीं है, सुन लो, कभी कहीं नाम आएगा तो ध्यान में रहेगा। वर्किंग कंडीशंस, यानी वर्किंग कंडीशंस का क्या है, आपका वर्किंग कंडीशन क्या है, एसी, फैन, लाइट, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, आपका कॉपी, जो भी आपको वर्क करने में एड करता है। अंडरस्टूड। फैक्ट्री के बारे में सुना है, जानते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज में काम होता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये वर्किंग कंडीशंस में एक एक्ट है। माइंस जानते हैं आप, द माइंस एक्ट 1952, इसमें कवर्ड है। प्लांटेशन कौन कौन जानते हैं, एनीवन हैज बीन टू हिल्स, कोई पहाड़ गया है कभी, टीवी में देखा है, टीवी में बगान देखा है ना, ऐसे करके बगान रहता है ना, चाय का बगान, कॉफी का बगान, रबड़ का प्लांटेशन। तो प्लांटेशन का वर्किंग कंडीशंस अलग होता है, हर समय बारिश हो रही है, हर समय वहाँ पे लोगों को अकोमोडेशन चाहिए, क्योंकि आप बहुत, वो सब बहुत शहर से बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे आसपास में अकोमोडेशन दिया जाना जरूरी होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द लेबर प्लांटेशन एक्ट 1951, द मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट 1966, द बीडीएल सिगार वर्कर्स एक्ट 1961, बीडीएल सिगार के फैक्ट्री में काम करने वालों का भी अलग एक्ट बनाया गया। अब वेज की बारी आती है, सबसे ज्यादा जरूरी तो वेज ही होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, वेज में आता है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यानी इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब अगर सेम काम करवा रहे हैं तो आप आदमी और औरत को बराबर पेमेंट करेंगे, ये रूल है, पहले नहीं किया जाता था, आज भी बहुत जगह नहीं किया जाता है। सेम काम करने की वजह के बावजूद औरत को कम पैसा देते हैं वो लोग। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ठीक है, ये आया वेजेस में, प्रोटेक्शन में। रेगुलेटिव का क्या मतलब होता है, रेगुलेटिव का मतलब होता है वैसे लेबर लॉज जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को रेगुलेट करते हैं, मतलब सहूलियत से चलाने में हेल्पफुल होते हैं। मान लो ये कॉलेज तुम आए, तुमको अगर इस कॉलेज के मैनेजमेंट को तुम एम्प्लॉयर मान लो और अपने आप को एक एम्प्लॉय मान लो, अगर तुमको पहले दिन ही ये बता दिया जाए कि यहाँ ये रूल है और आपको ये फॉलो करना है, यहाँ का डिसिप्लिन मेजर्स वही है, एंड यू हैव टू फॉलो दोस डिसिप्लिन। इफ यू डोंट फॉलो दैट डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। और यही मैनेजमेंट के लिए भी कुछ रूल्स है कि मैनेजमेंट को ऐसा फैसिलिटी देना है अपने एम्प्लॉइज को, नहीं देंगे
तो उनके खिलाफ भी ऐसा एक्शन हो सकता है, या द वर्कर्स कैन गो ऑन स्ट्राइक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ये साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं है कि उनको भी पता है कि क्या करना है और आपको भी पता है कि क्या करना है? उनके लिए भी डिसिप्लिन है और आपके लिए भी डिसिप्लिन है, ठीक है? रिलेशन रेगुलेट होगा ना आपके और उनके बीच में, कम क्योस होगा। तो रेगुलेटरी जो लेबर लॉज होता है ये यही करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन रेगुलेट करता है। जैसे ट्रेड यूनियन के बारे में सुना है, ट्रेड यूनियन के बारे में सुने होंगे, टीवी में तो देखे होंगे। यस यस मैम। ये एक्ट पढ़े हैं, किस पे पढ़े? एक्ट पढ़े कि बस ट्रेड यूनियन के बारे में? ट्रेड यूनियन एक्ट, जैसे कि ट्रेड यूनियन में बताया गया है सब कुछ, बहुत सारा प्रोस एंड कॉन्स सब चीज उसका रेगुलेटिव में आता है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल ऑर्डर स्टैंडिंग एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये तीन मेन एक्ट है। तो इसमें सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन आप समझ गए, ये सारे सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है? आप रिवाइज कीजिए, पहला बोलना शुरू कीजिए। तो पूरा नाम बोलो। जोर से। ये सारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, लेजिस्लेशन। और ये वेलफेयर क्या होता है कि जहाँ वर्कर्स की हालत बहुत खराब होती है ना, वेलफेयर फंड बनता है और उस फंड से उनको हेल्प किया जाता है, जैसे कि कोल माइन, माइका माइन, ये सब, ठीक है।